Hello, can you hear me, guys? Hello, hello, hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Prasad, can you check with the students as we have only four students on a portal? Hello, Prasad. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, I'm going to just wait for 1 more minute. Otherwise, Good evening, everyone. we are going to start with the lecture. I'm going to just wait for 1 or 2 minutes. Please check whether your friends have been logged in or not. Good evening, Pooja. Good evening, Akshada. अगर Ma'am, we will wait for more 2-3 minutes, then we'll start. Why? Because if the lecture has been scheduled at 7:15, why students are not coming on time? Because Ma'am, they must be having like net issue. see Sagar, because I have tremendous respect for those who have joined on time, right? Yes, Everyone ma'am. has work. Everyone has work. Everyone has some issues. But what about those who always join the class on time? Ma'am, because some of our classmates is from like rural Hmm. areas. They are living in rural Okay. areas now in these days. Okay. Okay. It's So, almost ma'am, they must be 7:19. having problem. It's almost 7:19. Let's wait for 1 or 2 minutes more. No problem. Yes, 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 ma'am.
Hello, is it start? It's going to start. We are waiting for latecomers. Yeah, oh, sure, sure. Okay, guys. Now I'm not going to wait for more time. Let's straight away start with the lecture on the, you can say, the first lecture on the introduction of GST. Now I'm going to share the PPT with you. Just let me know when the PPT will appear before you. Okay, just give me a moment. Hmm. Okay, guys, just tell me whether the PPT is before you or not. Is it Yes, appearing? sir. Yes, it's appearing, madam. Yes, Okay, ma'am. now Yes, ma'am. let's begin. So basically, today we are going to look at how how we can learn GST in more simple way and in more interesting way. So GST, basically, you all are aware that GST stands for Goods Service Tax. But when I'm calling goods, we should be all clear with the definition of goods. We should be aware about the definition of service. So as per the GST, first let's understand what do you mean by goods. Goods includes all materials, commodities, articles. So basically you need to remember that it's very much inclusive definition. मतलब जो कुछ भी है जिसको हम मटेरियल कहते हैं या कमोडिटी कहते हैं या इवन सम आर्टिकल कहते हैं, that is called goods. And service is defined, I find it very much funny. Service is defined in a very much funny way. सर्विस की डेफिनेशन जीएसटी में उन्होंने क्या लिखी है? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सर्विस. एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सर्विस. मतलब भैया समझ लो, when you are selling an article, when you are selling a material, any tangible thing, that is a good. But when you are giving some advice which is not tangible, how you can touch the advice? No. So even if you are selling the intangible advice, that is called service, and which is not a good, still it will come under the ambit of goods and service tax. मतलब जैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि what is not taxable, the oxygen which we are inhaling, that is not taxable, which is available at free of cost in the air. That is the only thing which is not taxable. But when you put that oxygen into the cylinder and when you start selling that cylinder, the act of selling itself become taxable. Why? Because now that freely available oxygen has become a good, because you have filled in the gas and you have converted that freely available oxygen into a good. So you need to remember that when you are selling something, when you are supplying something, either it is good or service, it is taxable under the goods and service tax. But when we should pay the GST, क्योंकि हमने पहले देखा कि excise duty, when in the pre-GST era, when there was excise duty, when you are producing something, when you are manufacturing the material, you have to pay excise duty because excise duty was on the act of production. VAT is the tax on the act of sale. In this case, what is the point of chargeability in the case of GST? So as per the act, goods and service tax is a tax on supply of goods or service or both. Guys, please pay attention. This definition has actually broadened the scope of tax liability.
They are not saying that you have to sell it profit. They are just saying on the supply of goods and service. मतलब अगर आपके 2 यूनिट्स आमने सामने है, यूनिट 1 रोड के इस तरफ, यूनिट 2 रोड के उस तरफ, and you are manufacturing something in unit 1 which can be used by unit 2 as their material, even if you are just transferring the goods from unit 1 to unit 2, it means you are not selling the goods from unit 1 to unit 2, you are just transferring the raw material from unit 1 to unit 2. Still you have to pay GST. Why? Because the transfer of material is tantamounting to supply of goods. So please underline this word. In GST, the most important definition we are going to learn is about supply of goods, and what will be included into the supply of goods and what will be the exceptions of this. Yes, point of charging the tax, point of charging the GST is supply of goods. But all the goods and services are under the ambit of GST. Yes, it's true, but with certain exceptions. Now let's understand what are the exceptions. We have done these things pre-GST indirect tax structure in India, and how all the other taxes have been emerged in the GST. So I'm just skipping this slide. Now I am very much interested in discussing the exceptional goods under the GST Act. Exceptional goods under GST Act का मतलब क्या है? The goods on which we still do not pay Hello? any GST. Yeah, मैम एक Yes. डाउट था कि पूछ सकता हूँ मैं आपको? जी पूछिए. मैम सपोज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, जी वो सिर्फ गुड्स ही सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दे आर जी. नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जी तो भी जीएसटी लगेगा? जी. उसका नाम उन्होंने GST दिया है बेटा. इवन इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स ओनली, फिर भी आपको उस पर GST पे करना पड़ेगा. इवन इफ से आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट, एंड आई एम Okay. प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, देन उस पर GST ही लगेगा, दो आई एम द सर्विस रेंडर. पहले कैसा था कि आपको याद होगा प्री एरा की प्रोफेशनल्स को सर्विस टैक्स लगता था क्योंकि वो सर्विस Yes. प्रोवाइड कर रहा है. मैन्युफैक्चरर को एक्साइज लगता था, क्योंकि एक्साइज और वैट लगता था क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है. बट वो उन्होंने हटाई दिया. उन्होंने मतलब कहा अभी कि ये आप तीनों एक साथ सर्विस, कंबाइन किया है. जी, अगर आप सर्विस दे रहे हो फिर भी देयर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए GST है. Okay. अगर आप गुड्स बेच रहे हो, इट मींस देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसलिए आपको, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि प्लीज अंडरलाइन द वर्ड सप्लाई, राइट. Okay. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल discussion over the concept of supply under the GST. क्योंकि in fact if you go through the bare act of the GST, उस supply definition पे ही 2-3 पे पूरा एक लेक्चर उस सप्लाई पे ही जाने वाला है हमारा. वंस इट इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर कि सप्लाई क्या है, GST देन आसान है कैलकुलेशंस. इज दैट क्लियर? सो आज हम क्या देख रहे हैं कि GST कैसा है, क्या उसमें आएगा क्या नहीं आएगा. जैसे मैं बात कर रही थी एक्सेप्शंस की, कौन सी चीज है ये GST के अंडर टैक्सेबल नहीं. पहली चीज है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये GST में नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑल द राइट्स टू impose tax remains with the state. And the funny situation we have seen in the month of May कि everywhere we have observed a lockdown, but after May आपको पता है कि अल्कोहल के शॉप्स खोले गए. एंड उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल रीजन था कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जब बेचा जाता है, उस पर जो टैक्स कलेक्ट होगा वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है. उसका कोई भी टैक्स में से पैसा सेंट्रल को नहीं जाता,
क्योंकि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कम्स अंडर द पावर ऑफ स्टेट, और लॉकडाउन की वजह से ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी स्टेट की, इसीलिए गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा, ये जानते हुए भी कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल, कोरोना बढ़ सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन the reason behind opening the alcohol shops was clearly the economical reason, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, जो लोग ऑलरेडी those who are suffering, अगर उनकी केयर लेनी है तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से झट से कलेक्ट होगा, अल्कोहल पर ज्यादा टैक्स रहता है। आई फील वेरी शेमफुल व्हेन आई से कि हमारा जो इकोनॉमिकल बजट है स्टेट का, उसमें से 70% रेवेन्यू जो हमें मिलता है टैक्स से, वो अल्कोहल से मिलता है। एंड बीइंग अ टीचर आई रियली फील सॉरी फॉर माय जनरेशन, फॉर योर जनरेशन, कि टू मेक मोर फ्रूटफुल थिंग्स इन आवर स्टेट, कि एक दिन ऐसा आए कि इनोवेशंस की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, सर्विस इतना अच्छे हम करें कि उस पर जो टैक्स है वो अल्कोहल से ज्यादा हो। आई ऑलवेज ड्रीम कि माई किड्स विल डू सच अ वंडरफुल इनोवेशंस एंड वंडरफुल, क्या कहेंगे हम, MIDCs, दे विल सेट अप MIDCs, कि एक दिन ऐसा है कि हम प्राउडली कह सकें कि माई स्टेट इज फाइनेंस्ड not by alcohol, the tax collected from alcohol consumption, but due to the highest level of employment. So are you with me, kids? I really dream one day we can achieve this. Are you with me? Yes, Hello? ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Please remember that. Please remember. The next part is 5 petroleum products. Actually, when we talk about the petroleum products, it is about crude oil, diesel, petrol, natural gas and the ATF. आप अभी मुझे बताइए कि हर रोज, मतलब लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी कि रोजाना पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, डीजल की प्राइस बढ़ रही है, तो एक्चुअली ये प्राइसेस कौन बढ़ा रहा है, स्टेट या सेंट्रल? कभी आपने पूछा किसी से? कौन बढ़ाता है पेट्रोल और डीजल की प्राइस या नेचुरल गैस की प्राइस? चलो तुक्का तो लगा सकते हो, सही आया तो सही आया, नहीं आया तो मैडम बता ही देगी। Central. Exactly, central. The power of deciding the prices in hands of central, especially our the distributors company, right? But these 5 petroleum products are the part of GST, but किस डेट से उन पर GST लगेगा ये अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। इसकी वजह से हम पेट्रोल पे स्टेट टैक्स भी दे रहे, ऑक्ट्रॉय भी दे रहे, एक्साइज भी दे रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप आज 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए का भर के आए हो, तो भैया समझ लो उसमें से 40 रुपए का आपने टैक्स पे किया है। एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, the purchasing cost of petrol is hardly 40 rupees, but उस पर एक्साइज आ रहा है आपका जो स्टेट को जाता है, वैट आता है, एक्ट्रॉय आता है, ऐसे बहुत सारे टैक्स मिलकर आप 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस दुगनी देते हो, जिसमें से आधा टैक्स ही रहता है। और जिस दिन वो GST के अंडर जाएगा, you will get a petrol at very cheap rate, क्योंकि almost today we are paying 100% tax on petrol। अगर GST पे गया तो GST का हाईएस्ट स्लैब रेट है 28%, मतलब टैक्स की जो 100% है वो रिड्यूस होकर टैक्स बर्डन सिर्फ 28% तक जाएगा। बट वो कब जाएगा उसकी डेट तो GST काउंसिल डिसाइड करेगी। लेट्स होप कि हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द रिकवर हो, and we should not depend only on the consumption of petrol and alcohol, और जिसकी वजह से पेट्रोल पर टैक्स रेट 28% आ जाए। लेट्स होप फॉर दैट।
Then the third is tobacco. Actually, tobacco is already included in a GST, but imposition of duty is again with the central government. So tobacco is again a costly product, though it's a part of GST. Still, when you are cultivating tobacco, when you are using the tobacco in say cigars and cigarettes, you have to pay additional excise duty on it. And the fourth thing is entertainment tax. You are very much aware that when you purchase the movie ticket, you always pay entertainment tax in it, on it, right? So basically, the imposition of entertainment tax is not in the hands of state government, central government, but authority is given to the local bodies. So, and in spite of being in the era of GST, entertainment tax will be there, and our local bodies will definitely enjoy the right to levy entertainment tax. So again, I will discuss with you that four things are out of purview of GST. One is alcohol for human consumption. Second, the all five petroleum products, then tobacco, and the last one is entertainment tax. Now, बहुत बहुत बात हो गई जीएसटी की, लेकिन जीएसटी क्यों लाया ये पहले हम समझ के लेते, क्योंकि एक बार अगर हम प्रोविजन सेक्शंस में घुस गए तो बहुत ज्यादा उस पर टाइम जाता है, लेकिन जीएसटी की जरूरत क्यों थी और जीएसटी आने से हमारा फायदा क्या हुआ ये भी तो समझ लेना चाहिए. So I am very much aware that being a student, you are familiar with the visiting canteens and restaurants. So for understanding the pre-GST era and post-GST era, I have given you the same bill of 2,200 rupees. जैसे 2,000 का आपने खाना खाया और जो 10% है मतलब 200 रुपए, आपके सामने है ना ये स्लाइड बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. सपोज आपके सामने अभी ये स्लाइड है. आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द प्री जीएसटी एरा. 2,000 का आपने खाना खाया, 200 रुपए का आपने सर्विस चार्ज दिया, मतलब जो वेटर बेटर आपको जो देते हैं उसका वो जो सर्विस टैक्स 200 का दिया. सो टोटल आपका बिल हुआ 2,200 विदाउट टैक्स. लेकिन उस पर प्री जीएसटी एरा में सर्विस टैक्स लगता था क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी सर्विस टैक्स का रेट प्री जीएसटी एरा में था 5.6%. तो 2,200 पे हमने सर्विस टैक्स दिया 123 रुपए का. देन कृषि कल्याण सेस 0.2%. देन उस पर स्वच्छ भारत सेस अगेन 0.2%. सो 4.4 आ गए दोनों. किस पर ये कैलकुलेट हो रहे हैं सारे परसेंटेज? 2,200 पे. एंड रेस्टोरेंट is doing the act of selling the goods, मतलब selling the food. इसलिए वैट लग गया आप पर 14.5% का. अगेन 2,200 के 14.5% निकाले तो 319 आ गए. सो कुल मिला के आप मुझे बताइए आपने कितना टैक्स पे किया? 123.2 प्लस 4.4 4.4 प्लस 319. What is the figure? जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से आपने 450.80. एग्जैक्टली 451 आई गेस. या Okay, 1, 2, 3. Yeah. हाँ या राउंड Yes, अप किया 450. मैंने. हाँ, सो 2,200 पे हमने अराउंड 451 का सिर्फ टैक्स पे किया एंड फाइनल बिल अमाउंट आ गई हमारी 2,651. ये तो प्री जीएसटी एरा था. लेकिन पोस्ट जीएसटी एरा में आप देख सकते हो ये सारे टैक्स उड़ गए. यू डोंट हैव टू पे सर्विस टैक्स, यू डोंट हैव टू पे वैट एंड एसी एसबीसी, नथिंग. 2,200 का बिल है आपका, उस पर रेस्टोरेंट के लिए एप्लीकेबल रेट है 18%. 18% में 9% पार्ट हमारे स्टेट को जाएगा, मतलब आधा स्टेट को जाएगा और आधा सेंट्रल को जाएगा. क्यों? क्योंकि
जो आप फूड ले रहे हैं और जो आपको फूड दे रहा है वो एक ही स्टेट में है. ओके, सो 9% दैट इज अ CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आने वाला ये नेक्स्ट स्लाइड्स में. ओके, सो 9% बाइफर्केशन किया. अभी छोड़ो CGST SGST इग्नोर कर सकते हो, सीधा देख लो GST 18% है. तो टोटल कितना आया? 2200 इंटू 0.18, इट्स 396. मतलब प्री GST एरा में वी वर पेइंग अराउंड 451, पोस्ट GST एरा में we have to pay only 396, resulting into total saving of 55 rupees. एक सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में मैकेनिकल चेंज किया और लोगों के ऑलमोस्ट 55 रुपीज बच गए. सही बात है. दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव वेलकम्ड GST. दूसरा और एक रीजन है जो है क्रेडिट का, लेकिन अभी तक हमने GST सीखा ही नहीं है, इसलिए मैं क्रेडिट के बारे में, रिवर्सल क्रेडिट के बारे में अभी बात नहीं करूंगी. लेकिन थोड़ा GST के कंसेप्ट सीखने के बाद we will definitely talk about the GST. So ये तो मैंने कंपैरिजन आपको दिखाया कि प्री GST क्या हाल थे, पोस्ट GST क्या हाल है. नाउ यू आर प्रिटी क्लियर कि GST अच्छा है या बुरा है. यू टेक द डिसीजन. बट मैंने आपको तो अभी दिखाया कि वी कैन सेव अराउंड 46 रुपीज. तो इस GST में हमें क्या सीखना है? फर्स्ट स्लाइड से मैं आपको कह रही हूँ कि वी आर गोइंग टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, पॉइंट ऑफ सप्लाई. उसके बाद जो मैकेनिज्म है ऑफ इम्पोजिंग टैक्स एंड इट्स कलेक्शन, क्योंकि GST में उन्होंने तीन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए. वन इज अ CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दूसरा है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और तीसरा है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अभी अगर इंट्रा सेल है, इंट्रास्टेट सेल है. इंट्रास्टेट सेल मतलब अगर पुणे के किसी बंदे ने मुंबई के किसी बंदे को अपने प्रोडक्ट्स बेच दिए, इसका मतलब हम स्टेट के बाहर गए कुछ परचेज सेल करने के लिए, गए या नहीं? मैं Yes. बात कर रही हूँ स्टेट के बाहर गए. पुणे के किसी बंदे ने मुंबई के बंदे को प्रोडक्ट्स बेच दिए, तो नहीं, स्टेट के बाहर गए? नहीं गए, सिटी राइट? के बाहर. सो सिटी के बाहर गए, लेकिन वी आर इन द सेम स्टेट, वी वर ऑपरेटिंग इन द सेम स्टेट. सो पॉइंट ऑफ सप्लाई एंड पॉइंट ऑफ कलेक्शन वाज इन द सेम स्टेट. एम आई राइट? ऐसा जब होता है, एट दैट टाइम वी ऑलवेज पे half part to CGST and half part as a SGST. जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि 18% रेट है, लेकिन सेम स्टेट में है, इसलिए उसका 9% जाएगा CGST को, मतलब सेंट्रल का शेयर होगा. 9% होगा GST, मतलब स्टेट का शेयर होगा. लेकिन अगर मुंबई का किसी बंदे ने कर्नाटक में गुड्स भेजे, मतलब that is resulting into the interstate transaction, मतलब हमारा स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, राइट? उस टाइम we will impose IGST, that is integrated goods and service tax. ओके, इसके बहुत सारे बड़े बड़े सेक्शंस हैं, वो भी हम देखने हैं. अभी तो इतना ही ध्यान में रखो कि when the two people from different state are coming together for some transactions in goods, maybe of service, maybe of goods, they have to pay IGST at the time of supply. But if two people from the same state are coming for some business transaction, and at the time of supply they have to pay CGST and SGST. Is that clear to you guys? Hello? Ma'am, can you please explain it once again? या मैं फिर से एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि चलो मान लो पुणे में हमने कुछ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किए और वो मुंबई के किसी
मन को बेच दिए, राइट? एक ही स्टेट में सप्लाई हुआ, हम स्टेट छोड़कर बाहर नहीं गए कहीं, राइट? और मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग पे चलो मान लो 18% का जीएसटी है, तो कैसे करेंगे? 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। बट उसी पुणे के बंदे ने अगर गुजरात के बिजनेसमैन को वो मोबाइल फोन बेच दिया, ओके, तो we will not calculate in terms of CGST or SGST. At that time, we will apply the rules of IGST. IGS क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन गया इंटर स्टेट में, स्टेट के बाहर। राइट? अपने स्टेट के बाहर गया। इतना अभी आप समझ लो, क्योंकि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी के बहुत अच्छे इजी रूल्स है, थोड़े से बड़े हैं, तो हम वो बाद में करने वाले हैं। उसके बाद हमें जीएसटी में देखना फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, द रेट्स हैज बीन डिफरेंट। कुछ चीजों पे 5% जीएसटी, कुछ चीजों पे 18% है, कुछ चीजों पे 28% है, कुछ चीजों पे 0 है। So under GST there are only 4 slabs: 0, 5, 18 and 28. बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट गुड्स है तो उस पर जीएसटी 0%, राइट? लग्जरियस गुड्स है, मतलब वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है इसलिए हम परचेस कर रहे हैं, दैट इट मींस इट्स अ वेरी मच लग्जरियस गुड्स, तो उस पे आएंगे 28%। मतलब आपकी कार, when you purchase the car you have to pay GST of around 28%. 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, उस पर 2,80,000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा। रोड टैक्स अलग, आरटीओ टैक्स अलग, कार पोल्यूशन टैक्स अलग। मतलब अगर आप 10 लाख की कार ले रहे हो, वो आपको घर तक लाने के लिए कम से कम 14 लाख देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो लग्जरी कार है। Even if you take the example, I'm really thankful to the Akshay Kumar for bringing such a fantastic movie on the sanitary napkins. Guys, our central government has made sanitary napkins in the category of very much the product of importance, और उस पर 0% GST. So if you are manufacturing at 100 rupees, you don't have to pay any tax on it. So remember, there are 4 slabs: 0, 5, then 18 and 28. आपके जो बिस्किट्स रहते हैं, बिस्किट्स खाते हो ना, उस पर, या पिज्जा खाते हो, उसके पिज्जा बेस जो रहते हैं, उस पर टैक्स रेट है 5%। मैडम ये हमें याद करना पड़ेगा, मैडम ये हमें रट्टा मारना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। इंटरव्यू में आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि चलो बताओ कार पे कितना रेट है। दैट इज अ कॉमन सेंस, किसी को याद नहीं रहता। उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट की कैटेगरी देते हैं, उसका नंबर्स रहते हैं, उसको बोलते हैं HSN, दैट इज अ हार्मोनाइज्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, वो रेफर करके, बुक वो रेफर करके, नंबर रेफर करके हमें रेट्स निकालने पड़ते हैं। सो डोंट बी वरीड कि आपको रेट्स रट्टा मारने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा जीएसटी का बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल पार्ट रहता है, वो जीएसटी रिटर्न्स एंड कंप्लायंस। एंड पर्सनली आई विल ट्राई टू डेफिनेटली शो यू द एक्चुअल रिटर्न्स ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स इज कैन नॉट बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटीज। अगर आपको असल में जीएसटी रिटर्न्स दिखाए तभी आपको पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है और कैसे मैचिंग वगैरह करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। So this fourth part is going to be very very much interesting, क्योंकि हम practically वो करके देखेंगे कि क्या रहता क्या है ये जीएसटी रिटर्न्स। So हमारा जो जीएसटी का पाथ है वो इस 4 पॉइंट्स में सेग्रीगेटेड होगा। पहले सप्लाई की बात करेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म की बात करेंगे, तीसरा रेट समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है समझेंगे, और चौथा जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, उसके प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको दूंगी। सो अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे जीएसटी की दिक्कत आ रही है आपको,
start noting down your all queries. You please ask me. I'll definitely get back to you. अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ नई query है, I will talk to more expert people and I'll convey their message. So please start writing, क्योंकि GST ऐसा एक्ट है जो हर रोज कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाता है, और GST के लिए आपको ऑन टोज रहना पड़ता है. कब कौन सी नई अमेंडमेंट आए पता ही नहीं चलता. तो even if you are working in this sector, please start writing your queries so we can have a discussion on it and we can solve it. एक लास्ट 5 मिनट्स है, सो आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, क्विक सॉल्विंग. जैसे मैंने आपको अभी रेस्टोरेंट बिल का बताया था कि कैसे हमने GST कैलकुलेट किया. 2200 पे 18% रेट था, तो इंट्रा स्टेट है, तो कैसे हम CGST और SGST लेते हैं, वैसे ही क्विक सॉल्विंग है. You have purchased pizza base packets of 750 from a local bakery. Calculate the final amount of bill after tax. Local bakery से आपने purchase किया, वहीं पे consume किया, तो क्या करोगे, कैसे calculate करोगे, कौन सा लाओगे, IGST लिखोगे या SGST CGST लोगे? हेलो, It's CGST, HGST. एग्जैक्टली. आप मुझे सीधा बताएं कितने पैसे दोगे उस बेकरी वाले को. What will be the last amount? 750 रुपीज बिफोर टैक्स है, इस पर 5% लगाना है आपको. कितने दोगे आप? 768.50. Okay, let me check. Absolutely. 700 क्या बोला जी आपने? 768.50. फिर से आप कर सकते हैं थोड़ा? हाँ, 1 मिनट. हाँ मैम, फिर से 37 रुपीज करेक्ट है बेटा. 37 रुपीज GST की अमाउंट आती है, and the last bill is 787.5. और जो राइट और जो फाइनल हमारा टैक्स जो आता है वो 37.5 रुपीज का हम टैक्स पे करेंगे, राइट. मतलब दुकानदार उस 37.5 में से आधा, मतलब 18.75 रुपीज हमसे ले रहा है फॉर SGST एंड 18.75 लेगा फॉर द CGST. सही बात है. आई होप सबको आया है. अब थोड़ा आपका मैथमेटिक्स का ब्रेन भी थोड़ा सा चेक करते हैं. एक्चुअली इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, लेकिन सेकंड वाला आप जरा सॉल्व करके देखिए. हमेशा बिस्किट्स लेने जाते हो, कल तो संडे है तो डेफिनेटली जाओ.